Greetings from SDMIC classes. Nothing is impossible for a brave and hardworking person with a willing mind. Students must have the qualities of 3 Ds, that is desire, decision and determination. Then they can achieve their life's goal. Bookkeeping and Accountancy. Chapter 2, we are continuing with the Chapter 2, Accounts of Not-for-Profit Concern. Part 3, and this is the 3rd class. Hope you must have watched the previous classes. I believe you all must have understood. Now we learned receipts and payments account in the last class. Now we have to discuss types of receipts. There are 2 types of receipts as we discussed in the first chapter, and also we have learned this in the 11th class. Types of receipts, capital receipts and revenue receipts. One should know what is a capital receipt and what is a revenue receipt. Revenue expenditure, capital expenditure. Unless and until you don't know that, means you will not be able to identify whether it is a balance sheet item or a trading item or a profit and loss account item. If you know these things, then you can if you make out these are the revenue expenditure or capital expenditure, you can make out, and you can definitely make a proper accounts, finalization of accounts. And these are very important things. And here in this not-for-profit concern also, we must know what are the capital receipts and what are the revenue receipts. We should identify that. And same way, these are the receipts and expenditure when capital expenditure and revenue expenditure. Identify both the things. So you should know what is that. And these are the things when you go further, means for your higher studies, this will be helpful. Capital receipts. All such receipts are non-recurring in nature and not forming part of regular flow of income of a concern are known as capital receipts. This we learned in in 11th standard, and also in the first chapter, introduction to bookkeeping, also this we learned in the chapter 1, introduction to partnership and partnership final accounts. So when we are finalizing the accounts, one should know capital expenditure and revenue expenditure, capital receipts and revenue receipts. These things there we have discussed in detail, and first chapter it is explained, and in the 11th class it is explained very well. So you should know that. If you don't you have any doubt or confusion, you can go to that 11th class and just read this particular section, so that whenever there is any problem, this is the advantage of the recorded classes. You can go back to the particular because this is available always there in the YouTube channel, in our YouTube channel. So go to the particular thing. If there is any confusion, you can go to the this particular class chapter number, and then find out that what are the capital receipts, what are the revenue receipts, what are the capital expenditure, what are the revenue expenditure, all these things. So whenever there is any doubt, you please go and refer that. So it is available there, always available. Whenever you need, you can just, that is the advantage of recorded classes. So now you know, means what is the terms are explained in the same way, means these are non-recurring nature. ये बार-बार नहीं होते हैं. This is not happening every now and then. It happens once in a while. That type of revenue receipts are called capital receipts. Same way expenditure also non-recurring in nature. मतलब बार-बार expenditure वो नहीं होता है, once in a while होता है. ये मैंने बहुत अच्छा तरह से समझाया हुआ था, explain किया हुआ था. Okay, so just you have to understand that. If there is any doubt, go and refer that particular video. So now I am just explaining in on a flow, because the basic things are explained there. Okay, let us continue. All such receipts are non-recurring in nature and not forming part of regular flow of income of a concern are known as capital receipts. ये regular flow of income का part नहीं है, ये once in a while होता है. कैपिटल रेसिट्स ये जो और बार बार नहीं होता, दैट इज़ नॉन रिकरिंग. रिकरिंग बोले तो बार बार होता है, नॉन रिकरिंग बोले तो बार बार नहीं होता है. ओके, और ये जो रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम जो हर जो इसमें से जो साल का जो इनकम का जो पार्ट में ये नहीं होता है, दैट इज़ अ कैपिटल रेसिट्स. एग्जाम्पल, स्पेसिफिक डोनेशन फॉर बिल्डिंग. फॉर एग्जाम्पल किसी ने कुछ वो बिल्डिंग के लिए कुछ डोनेशन दिया, ये इन द केस ऑफ
नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का ये है, इसके लिए ये जो बोल रहे हैं स्पेसिफिक डोनेशन फॉर बिल्डिंग एंड स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स, मतलब ये जो फंड्स जो दे रहा हूँ, ये जो डोनेशन दे रहा हूँ, ये जो अमाउंट जो दे रहा हूँ, ये पर्टिकुलर टूर्नामेंट्स के लिए मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ, ऐसा कुछ होता है ना. यू मस्ट हैव सीन दैट व्हेन वाचिंग मीन्स टीवी एंड ऑल दिस थिंग, नो स्पॉन्सर होता है वो. तो वो स्पॉन्सरशिप में जो कुछ पर्टिकुलर क्रिकेट स्टेडियम के जो बाजू में जिस साइड में सब लिखा है ना स्पॉन्सर्ड बाय, और कुछ टीवी में जो एक्सप्रेस स्पॉन्सर्ड और कोर स्पॉन्सर्ड ऑल दिस थिंग्स नो, वो अभी देखा होगा. तो कौन ये जो स्पॉन्सर करे, तो पर्टिकुलर पर्पस के लिए ये स्पॉन्सर कर रहा है. दैट मीन ये टूर्नामेंट के लिए, जो स्पेसिफिकली टूर्नामेंट के लिए ये जो फंड दे रहे हैं, ठीक है. दिस इज़ नॉट हैपनिंग एवरी नाउ एंड देन, व्हेन देयर इज अ टूर्नामेंट दैट टाइम इट हैपेंस. ओके, वो टूर्नामेंट के लिए जो डोनेशन दिया जाता है या नहीं तो कुछ फंड दिया जाता है, कुछ एडवर्टाइजमेंट्स जो लोग ने उनका कंपनी का एडवर्टाइजमेंट हो जाता है. तो लेकिन ये दिस हैज़ टू बी यूज फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस ओनली. Okay, so that type of funds, library, life membership fees, etc. ये जो होता है लाइफ मेंबरशिप बार बार नहीं होता है. लाइफ मेंबरशिप में बोले तो एक बार मिल गया तो ऐसा होता है, और फिर सब्सक्रिप्शन रेगुलर हो जाता है. लेकिन ये जो लाइफ मेंबरशिप बोलता है वो एक ही बार होता है. So this you should understand what are the examples के तरह से स्पेसिफिक डोनेशन फॉर बिल्डिंग, कुछ कैपिटल असेस कुछ इसके लिए होगा. फॉर एग्जांपल अभी कुछ क्लब बना रहा है, क्लब में बोलेगा मैं इतना आइटम्स में के लिए मैं डोनेट करता हूँ, तो वो उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही होता है. कुछ स्पोर्ट्स टूर्नामेंट रहेगा या कुछ भी रहेगा या कुछ भी गेम्स आइटम रहेगा या कुछ भी है, तो उसके लिए स्पॉन्सरशिप करता है, तो टूर्नामेंट्स के लिए. तो दीज आर द थिंग्स ऑफ कैपिटल टाइप्स ऑफ receipts, capital receipts. No sales process of fixed assets, all these things. Now capital receipts are either added to the capital fund or separately shown on balance sheet side of the balance sheet, liability side of the balance sheet. ये जो capital receipts either added to the capital fund, इधर अभी उसमें स्पेसिफिक किया रहेगा इतना परसेंटेज, या नहीं तो फुल कैपिटल में ऐड कर सकते हैं और आप ये यूज़ कर सकते हैं, या नहीं तो यू हैव टू यूज़ दिस फंड फॉर अप टू दिस मच एंड बैलेंस यू कैन यूज़ फॉर द अदर पर्पस लाइक दैट. वो लेटर जब भी हम लोग कुछ जो वर्कआउट करते टाइम में आप लोग को समझाया जाएगा. दिस इज़ नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट. तो जो कैपिटल रिसीट्स जो कैपिटल में ऐड कर सकते हैं करके, जो उसका जो डोनर जो दे रहे तो दैट टाइम वो दैट कैन बी एडेड टू द कैपिटल फंड. और बोलेगा ये जो पर्टिकुलर पर्पस के लिए इसको सेपरेटली दिखाना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल वो पर्टिकुलर साल में जो डोनेशन दिया या फंड दिया है या कुछ पर्पस के लिए जो कुछ पैसा दिया है, वो उस साल में अगर एक्सप्लेन नहीं हो रहेगा तो देन दैट हैज़ टू बी शोन इन द बैलेंस शीट सेपरेटली इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट. Now revenue receipts, all such receipts which are recurring in nature and represent regular flow of income of a concern are known as revenue receipts. जो अभी हम लोग ने यहाँ जो बताया था, जो ऊपर जो कैपिटल रसीट्स में नॉन रिकरिंग इन नेचर, और यहाँ क्या होता है रिकरिंग इन नेचर. रेवेन्यू रिसीट में रिकरिंग इन नेचर मतलब बार बार वो होते रहते हैं एट एनी टाइम. एक महीने में 10 बार, 50 बार, 100 बार, 1000 बार भी हो सकते हैं ऐसा, या हर महीने में मीन्स हर महीने में बार बार हो सकता है, या नहीं तो एक महीने में बार बार हो सकता है, या इतना पर्टिकुलर पीरियड में बार बार हो सकता है, या थ्रू आउट द ईयर बार बार हो सकता है. रिकरिंग है, दैट कैन रिपीट अगेन. रिकरिंग मीन्स रिपीट अगेन एंड अगेन. सो नेचर और represent फ्लो, रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम. जो पहला जो कैपिटल में बोलता है इट इज़ नॉट ए रेगुलर, नॉट फॉर्मिंग ए पार्ट ऑफ रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम. यहाँ क्या होता है जो रेवेन्यू रिसीट्स में इज फॉर्मिंग ए पार्ट ऑफ रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम टू द कंसर्न आर नोन एज रेवेन्यू रिसीट्स. अब उसका एग्जाम्पल है सब्सक्रिप्शन. मतलब इन द केस ऑफ ये जो क्लब होगा या नहीं तो स्पोर्ट्स क्लब होगा या लाइब्रेरी होगा, उसका जो सब्सक्रिप्शन जो होता है, मतलब हर महीने में जो इतना जो सब्सक्रिप्शन या हर साल में इतना सब्सक्रिप्शन होता है, दैट इज़ अ रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम टू द कंसर्न. ओके, ये एक बार नहीं है, ये बार बार हो सकता है. ठीक है. और रेंट जो भी कुछ भी उसका जो होता है, जो कुछ लेट आउट किया रहेगा जो क्लब का, या नहीं तो फाउंडेशन का जो इसका बिल्डिंग का कुछ पार्ट कुछ रेंट पे दिया रहेगा, उसका रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है, रेंट मिलते रहते हैं. और लॉकर रेंट उधर जो रखते हैं, जो मेंबर्स आते हैं वो लॉकर लेते हैं, उसका जो लॉकर रेंट रहता है, मिनिमम लॉकर रेंट जो मेंबर्स के लिए होता है वो, या कुछ बाहर से आएगा तो उनको जो रेंट से थोड़ा ज़्यादा चार्ज करते हैं उनका गेस्ट आता है उसका. और इंटरेस्ट रिसीव्ड, वो कुछ भी एफडी में या किधर भी कुछ ये रखा रहेगा फंड्स, उसका इंटरेस्ट मिलता है. दैट इज, दीज आर रिकरिंग इन नेचर. नाउ रिसीट्स,
को हम लोग ने डिफरेंट टाइप्स में हम लोग यह किया जाता है. वन इज कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट्स. रेवेन्यू रिसीट्स आर income will be taken to the income and expenditure account, whereas capital receipts are taken into the balance sheet. You understood? No, I'll explain you once again. Receipts, ये जो receipts को टू टाइप्स में कंसिडर किया जाता है, ये किया जाता है कैपिटल receipts एंड रेवेन्यू receipts. तो कैपिटल receipts को कहाँ लेते हैं और रेवेन्यू रिसीट्स को कहाँ लेते हैं, जस्ट देख लीजिए. सो रिसीट्स आर ऑफ टू टाइप्स, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स. एंड रेवेन्यू रिसीट्स आर टेकन इनटू द income and expenditure account, and capital receipts are taken to the balance sheet. It is clear, no? All receipts are not income. सारा का सारा receipts income नहीं होता है. Capital receipts and capital receipts भी नहीं होता है and considered in a different manner. वो उसको अलग तरीके से दिखाया जाता है. Now types of payments. जब भी types of receipts हम लोग ने बोला, same way types of payments भी, expenditure भी होता है उसका. Capital expenditure, revenue expenditure, मतलब कैपिटल पेमेंट्स, रेवेन्यू पेमेंट्स ये होता है. और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब डिफर्ड रेवेन्यू पेमेंट्स, इसको जो इसमें क्या होता है, टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर नहीं होता है. एक्सपेंडिचर इसको कैपिटल पेमेंट्स होता है, रेवेन्यू पेमेंट्स होता है, डिफर्ड रेवेन्यू. Here it is, though it is an expenditure which is we called as payments, but when we for the purpose of studying in a better thing, we will say that जो भी खर्चा जो होता है that वो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं. ये भी हम लोगों ने सीखा हुआ था, अच्छा तरह से सीखा हुआ था. The 11th class 11th standard और अपना में जो फर्स्ट चैप्टर में एक्सप्लेन किया हुआ था. कैपिटल एक्सपेंडिचर सेम हम लोग ने जो कैपिटल रिसीट जैसा बताया था, कैपिटल रिसीट्स उसी के सेम वे कैपिटल रिसीट्स बोलेगा तो दिस आर नॉन रिकरिंग इन नेचर. दिस वहाँ रिसीट्स आर नॉट रिकरिंग इन नेचर, यहाँ जस्ट उसका ये चेंज हो गया, एक्सपेंडिचर नॉन रिकरिंग इन नेचर and it's not forming a part of regular flow of expenditure. ये उधर not forming part of regular flow of income. ये regular expenditure नहीं है, once in a while होता है. ठीक है. The benefit of such expenditure are likely to be received for a long period. ये जो हम लोगों ने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो लास्ट हमने बताया था, मैंने अच्छा तरह से समझाया था. कुछ मशीनरी इंस्टॉल करते हैं, मशीनरी इज़ नॉट यूज फॉर 1 year और 2 year, इट इज़ यूज फॉर मेनी ईयर्स. ऐसा 1 साल के लिए कुछ मशीनरी नहीं रहता है. जो मशीनरी जो हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं कुछ प्रोडक्शन के लिए, वो कम से कम 5-10 साल का, 8-10 साल का, यानी तो उससे ज़्यादा, जब तक उसका ये प्रॉपर यूटिलाइजेशन फुल नहीं होएगा तब तक का उसका ये जो उसके लिए जो मशीनरी यूज़ करता है, तो वो मशीनरी का हम लोग ने जो पर्टिकुलर उसका डिप्रिसिएशन हर साल में राइट ऑफ करके उसका जो वैल्यू नील कर देता है, हर साल में पर्टिकुलर परसेंटेज राइट ऑफ करते करते. तो उसमें जो और टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर हम लोगों ने कैपिटल एक्सपेंडिचर बताया था. यहाँ इसमें क्या होता है, ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है. तो टर्म्स वहाँ जो एक्सप्लेन किया हुआ था मशीनरी का, जो एग्जाम्पल बता के जो बताया था, सेम टाइप का ही है, बट दैट इज़ फॉर द मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, ट्रेडिंग कंसर्न. और ये क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न. तो यहाँ भी जो टर्म हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं तो सेम ही है ना, देयर इज़ नथिंग डिफरेंस. द एक्सपेंडिचर व्हाट इज़ यूज्ड हियर इज़ अ डिफरेंट टाइप, but the term what you are same ही होगा. These expenditures are non-recurring in nature and the benefits of such expenditure are likely to be received for a long period. बहुत लंबे टाइम तक का उसका जो बेनिफिट इसके लिए यूज़ होगा, उसके लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, यही सेम टर्म वहाँ भी यूज़ किया है. ओके, दैट इज़ द थिंग. और उसका एग्जाम्पल, these expenses are shown on the asset side of the balance sheet, added with the respective assets and deducted a certain percentage of depreciation and balance carry forward to next accounting years.
ये जो होता है दिस एक्सपेंसेस आर शोन इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, मतलब कोई भी जो एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो एसेट साइड में, बैलेंस शीट का एसेट साइड में दिखाएगा, और इट शुड बी एडेड टू द रेस्पेक्टिव एसेट्स एंड डिडक्टेड सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिप्रिसिएशन। मैंने अभी बताया था वो जो डिप्रिसिएशन बिल्डिंग रहेगा, तो कोई कुछ फर्नीचर वर्नीचर या कुछ भी जो इसके लिए जो यूज़ करते हैं वो एसेट्स का जो डिप्रिसिएशन हर साल में राइट ऑफ करके बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करते रहेगा टिल द कंप्लीट राइट ऑफ होते हैं तब तक। या नहीं तो एसेट डिस्कार्ड करते हैं, फॉर एग्जांपल बिल्कुल यूज़ नहीं है, अभी कोई चेयर टेबल या कुछ फर्नीचर रहेगा वो बिल्कुल यूज़ ये ख़राब हो गया, या एसी कुछ लिया है उसको बिल्कुल ख़राब हो गया, फंक्शन ही नहीं होता है, तो देन उसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा, तब तक उसको राइट ऑफ करते रहेगा। ओके, उसका एग्जाम्पल है परचेस ऑफ लैंड, मशीनरी। लैंड का तो डिप्रिसिएशन नहीं होता है, लेकिन मशीनरी कुछ मशीन्स या कुछ ये लिया रहेगा, या इंस्टॉलेशन एंड अदर एक्सपेंसेस ऑफ मशीनरी, और फर्नीचर जो क्लब में ये सब में इतना बड़ा मशीनरी होता है, लेकिन एसी और कुछ कूलर्स या कुछ अदर टाइप्स ऑफ थिंग्स, कुछ फर्नीचर, कुछ लॉकर्स, ये सब जो लेते हैं उसका वो एक्सपेंसिव लॉकर्स ये सब जो रहता है, बड़ा बड़ा ये कुछ रहता है, या कुछ रिक्रिएशन आइटम्स जो एसेट्स लेते हैं वो सब कॉस्टली ये होता है, तो फर्नीचर एक्सेट्रा। नाउ कैपिटल एक्सपेंडिचर समझा होगा, कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर देख लीजिए बहुत अच्छी तरफ से, एक बार आपका समझ में आ जाएगा ना, देन इट विल बी वेरी वेरी इफेक्टिव एंड वेरी वेरी यूजफुल टू यू इन योर फॉर योर फ्यूचर, जो आप आगे हायर स्टडीज़ में जाएगा तो उसको ध्यान से एक बार ये ध्यान में आ जाएगा ना, तो एवरीथिंग विल बी फॉलोइंग दिस है ना, बहुत ईजी होते जाएगा। सो इट इज़ यू फोकस ऑन दिस एंड स्टडी इट। नाउ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वहाँ हम लोग ने रेवेन्यू जो रेवेन्यू रिसिट्स का बताया था, दीज रेवेन्यू रिसिट्स आर ऑफ रिकरिंग इन नेचर, और उसका जो बेनिफिट्स है फ्लो ऑफ इनकम हर इसमें हो जाता है। द बेनिफिट ऑफ द सेम इज फॉर द रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम में हो जाता है। यहाँ जस्ट ऑपोजिट, वहाँ रिसीट होता है, यहाँ एक्सपेंडिचर होता है, लेकिन टर्म सेम ही है। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बोलता है दीज एक्सपेंसेस आर रिकरिंग इन नेचर, सो वो खाली वो रिसीट्स एंड एक्सपेंसेस खाली उधर वही रिप्लेस किया हुआ है, बाकी सेम ही है। एंड द बेनिफिट ऑफ दीज एक्सपेंसेस आर एंजॉयड फॉर अ शॉर्ट पीरियड, दैट इज इन ए करंट ईयर। वहाँ रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम में हो जाता है, यहाँ रेगुलर फ्लो एक्सपेंडिचर में हो जाता है, साल में बार बार ये जो एक्सपेंडिचर हो सकता है इसका रिकरिंग है। मीन्स होप इट इज़ क्लियर। एग्जाम्पल सैलरी, रेंट, सेलिंग एक्सपेंसेस, या कुछ भी मटेरियल जो होता है सेलिंग, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस, कन्वेंस, welfare expenses, staff welfare expenses, all these things, no, this comes in comes as a regular expenditure। अभी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बोलेगा तो हर महीने में उसका बिल आएगा, राइट, और कुछ रेंट रहेगा तो हर महीने में उसका रेंट देना पड़ेगा, सैलरी हर महीने में देना पड़ेगा, कन्वेंस बोलेगा तो इन बिटवीन किसी को किधर जाने का, स्टाफ को इधर उधर जाने का, आने जाने करके, तो और हर जब तक जब भी जाएगा तभी उसका एक्सपेंसेस होता है, ठीक है, लाइक दैट इट इज़। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज recurring in nature and the benefit of these expenses are included in a short period of time, ना 1 year, करंट ईयर में। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये भी बताया था, एडवर्टाइजमेंट से हम लोगों ने पेमेंट किया है करके, जो स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड में भी एक्सप्लेन किया हुआ था, और ये चैप्टर 1 में भी एक्सप्लेन किया हुआ था। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एक्चुअली ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सच एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड फॉर रिसीविंग बेनिफिट फॉर मोर देन ए ईयर। इसका एग्जाम्पल एडवर्टाइज एक्सपेंडिचर पेड फॉर मोर देन 1 ईयर, ये सेम थिंग ही उधर वहाँ भी एक्सप्लेन किया हुआ है। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अभी इधर भी जो क्लब रहेगा, यानी तो कुछ हॉस्पिटल रहेगा, यानी तो कुछ स्कूल रहेगा, कुछ एडवर्टाइजमेंट कैंपेन जो होते हैं वो फॉर लॉन्ग पीरियड के लिए जो होता है। अभी फॉर एग्जांपल एक बड़ा होर्डिंग, यानी तो एक बड़ा टीवी कैंपेन जो चल रहा है, वो बोलेगा एक 2 साल के लिए, 5 साल के लिए कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, और पेमेंट है उसका पेमेंट कर दिया, तो एक्सपेंडिचर ऑलरेडी उसका पेमेंट तो ऑलरेडी दे दिया है, बट द एक्सपेंडिचर जो इज़ फॉर 5 ईयर समझो, तो 5 ईयर तक उसको और जितना
प्रोपोर्शनेटली स्प्लिट करके डिवाइड करके वो पर्टिकुलर ईयर का वो पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में लेता है, बाकी का कैरी फॉरवर्ड करता है. दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू. मतलब डेफर बोलेगा तो चेंज. वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज actually a revenue expenditure. Such expenses is incurred for receiving benefits more than a year. Like example, advertisement expenditure paid for more than 1 year. Now revenue receipts, credit side of income. कहाँ लेने का, where to take it. Revenue receipts are taken to the credit side of income and expenditure account. Capital receipts are taken to the liability side of balance sheet. Now just opposite देखो. Revenue payments, revenue expenditure, debit side of income and expenditure account. The revenue receipts को credit side of income and expenditure, the revenue payments को debit side of income and expenditure account. और capital payments, that is taken on the asset side of the balance sheet. यहाँ capital receipts, liability side of the balance sheet, the capital payments, asset side of the balance sheet. It's very clear. ओ अपना 11th स्टैंडर्ड का जो मैंने जो बेसिक जो एक्सप्लेन किया हुआ था, तो उसमें अगर समझ में आ जाएगा तो ये बहुत इजी हो जाएगा. और अपना चैप्टर 1 में भी मैंने ये जो एक्सप्लेन किया हुआ है. ओके, सो इट्स वेरी इजी, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट. एक बार वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, देन इट इज़ वेरी इजी. दैट इज़ व्हाट आई एम टेलिंग इन द लास्ट स्लाइड में. मैं हमेशा बोलता है, मेक योर बेस स्ट्रॉन्ग so that you can do anything in future. You can go to any higher studies and it will be very easy. It will not be difficult for you. Now meaning of income and expenditure account. वहाँ हम लोग ने जो अपना ट्रेडिंग कंसर्न को जो बताया था, उधर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है. ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. दिस बिकॉज दिस इज नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स. तो नो, इसका मीनिंग तो ऑलमोस्ट सेम ही हो जाता है. खाली वो टर्म्स जो यूज़ करते हैं, जो नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से वो चेंज होता है. ओके, और स्ट्रक्चर स्लाइटली डिफरेंट हो जाता है. वो प्रेजेंटेशन थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट हो जाता है. अदरवाइज जो फॉर्मेट तो ऑलमोस्ट सेम है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. दैट इज़ द थिंग. सेम टी फॉर्म या कुछ वर्टिकल फॉर्म, कौन सा भी फॉर्म आप यूज़ कर सकता है. ठीक है, दैट विल बी एक्सप्लेन्ड इन सेपरेट. मीन्स जो जनरल पब्लिक के लिए जो यूज़ कर रहे हैं उसको मैं उधर वहाँ मैं वर्टिकल टाइप ऑफ बैलेंस शीट का और वर्टिकल टाइप ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर का सब एक्सप्लेन करेगा, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं. ठीक है. Now meaning of income and expenditure account. Meaning, income and expenditure account is a summary of revenue, incomes and revenue expenses for a particular period. जो एक पर्टिकुलर पीरियड बोले तो एक साल, वो हर साल में उसको क्लोज करना पड़ता है. फिर फर्स्ट अभी तो सब यूनिफॉर्म ही हो गया, 1 अप्रैल टू 31 मार्च. तो वो पर्टिकुलर पीरियड का जो समरी ऑफ, मतलब जो जितना पेमेंट्स और रिसीट्स एंड पेमेंट्स, रिसीट्स कितना हो गया, पेमेंट्स कितना हो गया, और जो पर्टिकुलर हेड वाइज जो अकाउंट्स को निकालेगा, उसका पोस्टिंग करने के बाद में जो हेड वाइज अकाउंट्स को निकालेगा, उसका जो समरी ऑफ रेवेन्यू ऑफ इनकम का जो समरी, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर का क्रेडिट साइड में रेवेन्यूज का ले लेते हैं, और एक्सपेंसेस को पर्टिकुलर जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेबिट साइड में ले लेते हैं. ठीक है, तो दिट इज़ अ समरी. So income and expenditure account is a summary of revenue, incomes and revenue expenses. Revenue, incomes and revenue expenses of a particular period. Clear? It is similar to profit and loss account. बताया मैंने already ना sir. It's a nominal account. वहाँ हम लोग ने बताया था receipts and payments are whereas receipts and payments are account is a real account. डोंट गेट कन्फ्यूज. रिसीट्स एंड वो कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो यू शुड नॉट मिस दैट, यू शुड नॉट लूज दैट मार्क. रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स आर रियल अकाउंट्स. ओके, वेयर एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट. सेम वे इज ए नॉमिनल अकाउंट. Not for profit concerns, prepare income and expenditure account. The income and profit and loss account is a nominal account. Same way, income and expenditure account is also a nominal account. So,
income and expenditure account is a nominal account. Don't get confused. Receipts and payments accounts are real accounts and profit and loss account is a nominal account. Same way, income and expenditure account is a nominal account. Okay. All revenue expenses or losses of current year are debited and all revenue, income or gains of current year are credited to this account. ये हम लोग ने जो previous slide में भी बताया था ना, मीन्स कहाँ लेने का करके, revenue expenses or losses of current year are debited and revenue, income or gains are or current year are credited to this account. Now incomes, income and expenditure account, only revenue, incomes or gains of the current period are credited. जो इनकम में जो करंट ईयर का, लेकिन रिसीट्स एंड पेमेंट्स में इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कौन सा साल के थे, प्रीवियस ईयर का होगा, करंट ईयर का होगा, नेक्स्ट ईयर का होगा, जो भी होगा दैट विल बी टेकन क्रेडिटेड टू द इनकम. और एक्सपेंसेस को भी ऐसा है, मीन्स व्हेन इट इज पेड फॉर द प्रीवियस ईयर और करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर, इट विल बी टेकन टू द पेमेंट साइड ऑफ द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट. Whereas income जब भी रिकॉर्ड करते टाइम में in income and expenditure account only revenue, incomes और gains of the current period are credited. मतलब वो पर्टिकुलर पीरियड में, वो पर्टिकुलर ईयर में कितना एक्सपेंसेस, कितना इनकम आ गया है, वो पर्टिकुलर पीरियड का इनकम कितना है, उतना ही वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले लेते हैं, अकाउंट में ले लेते हैं. एग्जाम्पल, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड ऑन दैट पर्टिकुलर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर ईयर, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर ईयर, pertaining to that year only, sundry receipts, general donation received, tuition fees received, etc. वो पर्टिकुलर ईयर का. Incomes received for a previous year or next year are not taken into this account. इनकम एक्सपेंडिचर में ले लेगा. तो यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होने का. रसीट्स एंड पेमेंट्स में हम लोग प्रीवियस ईयर का होगा, करंट ईयर का होगा, नेक्स्ट ईयर का होगा. रसीट्स अगर इनकम रहेगा तो इनकम रसीट साइड में लेते हैं और पेमेंट एक्सपेंडिचर रहेगा तो पेमेंट साइड में ले लेते हैं. वेयरएज इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते टाइम में वो पर्टिकुलर ईयर का ही ले लेते हैं, बाकी का कैरी फॉरवर्ड किया जाता है. और प्रीवियस ईयर का तो उसके साथ में नॉकआउट किया जाता है, जो हम लोग ने आउटस्टैंडिंग दिखा रहेगा उसके साथ में वो नॉकआउट किया जाता है. और नेक्स्ट ईयर का रहेगा तो वो कैरी फॉरवर्ड करता है बैलेंस शीट में. और करंट ईयर का पर्टिकुलर रहेगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले लेता है. इज क्लियर? हाउएवर, all incomes pertaining to current year, whether received or not received or received during the previous year for this are taken into account. However, all incomes pertaining to current year, whether received or not or received during the previous year for this year are taken into this account. ये जो करंट ईयर में जितना भी इनकम का जो रिसीट हो गया वो ले लेगा, और प्रीवियस ईयर में जो कुछ पेमेंट करंट ईयर के लिए दिया रहेगा, तो प्रीवियस ईयर में जो एडवांस पेड में दिया रखेगा उसको ये ईयर के लिए होगा, वो भी इसमें ये नॉर्मली वो अपना जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम लोग बनाया था ना उसी टाइप का ही है. तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है. वो अगर एक समझ में आ जाएगा तो ये करने में ईजी है. खाली डिफरेंस इतना है, टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज़ डिफरेंट, दैट इज़ ओनली डिफरेंस. अदरवाइज द थिंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ ऑलमोस्ट सेम टाइप. वो अगर समझ में आएगा तो ये भी समझ में आ जाएगा, वेरी इजी है. ठीक है, तो वहाँ का ये जो है एक्चुअली वो एक रिपीटेशन है, अदरवाइज कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. खाली टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ डिफरेंट. दिस इज़ नॉट फॉर प्रॉफिट एंड दैट इज़ द अदर वन इज़ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन. उतना ही फ़र्क है. खाली टर्म्स और ये सब जो यूज़ कर रहे हैं सेम, वहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूज़ करता है या इनकम एंड एक्सपेंडिचर यूज़ करता है, दैट्स उतना ही फ़र्क है. और यहाँ बाकी सब ये सब ट्रेम है. वहाँ ट्रायल बैलेंस बनाता है, यहाँ हम रसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाता है. वहाँ हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है, यहाँ हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाता है. बैलेंस शीट तो सेम ही है, सब जगह पे बनाता है. और प्रेजेंट करने का थोड़ा अलग तरीका है, ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है, फॉर्मेट सेम ही है. ऑन द अदर हैंड, आउटस्टैंडिंग इनकम्स एंड प्री रिसीव्ड इनकम ऑफ करंट ईयर आर कंसिडर्ड. वो तो बताया था ना, जो इनकम का रहेगा
तो वो प्री रिसीव्ड इनकम होगा। वो लास्ट ईयर में हम लोग ने इनकम रिसीव्ड इन एडवांस में या कुछ प्री रिसीव्ड इनकम में हम लोग ने किया रहेगा, उसको सामने वो नॉकआउट करके इधर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेके आएगा। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का रहेगा, और प्रीवियस ईयर का जो पेमेंट करने का है वो ईयर में ए ईयर के लिए होगा, करंट ईयर के लिए होगा, वो उधर नॉकआउट करके इधर ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेके आता है। ये जो भी आप लोग ने थोड़ा प्रैक्टिकली करते टाइम है ना, बहुत ईजी हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट समझ लो, it's very easy, it's not very difficult. Now expenditure, only revenue expenses or losses of current year are debited to this account. Same रेवेन्यू का जस्ट ऑपोजिट साइड में ऑपोजिट है ये एक्सपेंडिचर लेते टाइम में हम लोग बोलेगा रेवेन्यू एक्सपेंसेस और लॉसेस of current year are debited to this account. Items of expenses of not profit concern may different from concern to concern. तो ये जो headings जो होता है वो concern मैंने थोड़ा टाइम पहले जो प्रीवियस स्लाइड में बताया था, जो हेड ऑफ द अकाउंट्स है, मतलब आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल अभी हॉस्पिटल का होगा, उसका हेड ऑफ अकाउंट्स अलग होगा, क्लब का, स्पोर्ट्स क्लब का होगा उसका अलग होगा, लाइब्रेरी का होगा अलग होगा, स्कूल का होगा अलग होगा, कॉलेज स्कूल का कुछ रहेगा तो अलग होगा, लाइक दैट इट इज़। और कुछ ट्रस्ट होगा उसका कुछ अलग होगा, हेडिंग्स, लेकिन फॉर्मेट एंड एवरीथिंग विल बी सेम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। तो रिसीव्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट वो ऐसा रहेगा। लेकिन हेड ऑफ एक्सपेंसेस बोलेगा तो समझ में आया ना। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, कन्वेयंस, स्टाफ वेलफेयर, सैलरी, ये जो होता है उसका। और समझो फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी में रहेगा तो बुक्स परचेज करता है, तो पीरियोडिकल्स, मैगजीन्स, ये सब जो है वो लेते रहता है। वेरस इन हॉस्पिटल में रहेगा तो मेडिसिन और ये सब रहता है। यहाँ सैलरी कुछ ज़्यादा ये नहीं होता है, कुछ स्कूल में रहे, कॉलेज में रहेगा तो इसका इन लोगों का सैलरी होता है, और वहाँ उनका सैलरी तो सैलरी ही होता है। लेकिन कुछ एक्सपेंसेस का जो अकाउंट्स है, जो परचेज ऑफ मेडिसिन होता है, यहाँ परचेज ऑफ बुक्स होता है। और स्पोर्ट्स क्लब में रहेगा तो परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल होता है, लाइक दैट इट इज़, ठीक है। और यहाँ टूर्नामेंट एक्सपेंसेस होते हैं, वहाँ दूसरा कुछ एक्सपेंसेस होता है, दैट इज सो हेड ऑफ एक्सपेंसेस चेंज होता है, बाकी कुछ ये नहीं है। एक्सपेंसेस पेड फॉर प्रीवियस ईयर और फॉर द नेक्स्ट ईयर आर नॉट टेकन इनटू द अकाउंट। जो प्रीवियस ईयर के लिए कुछ पेमेंट किया है और नेक्स्ट ईयर के लिए कुछ पेमेंट किया है, वो दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड ईयर। हाउएवर ऑल एक्सपेंसेस परटेनिंग टू करंट ईयर वेदर एक्चुअली पेड और नॉट paid during the previous year or current year are taken to the account। जो previous year में जो पेमेंट करने का था किया नहीं है, या नेक्स्ट ईयर के लिए पेमेंट करने या था, वो सब है ना, जो भी whether it is related to the pertaining to the current year are taken to this account। करंट ईयर के बेसिस पे कुछ प्रीवियस में दिया है या ये है, वो ये पर्टिकुलर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले लेते हैं, अकाउंट में ले लेते हैं। In other words, outstanding expenses for and prepaid expenses during previous year are considered. It's already explained now इसमें previous slide में। Income and expenditure account shows surplus or deficit of the concern। अभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो टर्म यूज़ करते हैं ना, ये भी मैंने जो लास्ट क्लास में कुछ एक्सप्लेन किया हुआ था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट होता है। यहाँ वैसा कुछ टर्म नहीं है, यहाँ जस्ट उसको इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट उसको सरप्लस बोलते हैं, इंस्टेड ऑफ लॉस इधर डेफिसिट बोलते हैं, दैट इज इतना ही डिफरेंस है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये जो होता है, अगर रेवेन्यूज मीन्स income side is more than the expenditure side, then it is called a surplus, whereas expenses are more than the receipts, रेवेन्यूज़ के से ज़्यादा रहेगा तो उधर लॉस के जगह पे डेफिसिट बोलते हैं, ठीक है। सेम इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट इधर बोलते हैं सरप्लस, इंस्टेड ऑफ लॉस इट इज़ बोलते हैं डेफिसिट। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में वर्ड टर्म यूज़ करने का है सरप्लस और डेफिसिट। Excess of income over expenditure is known as surplus, while excess of expenditure over income is known as deficit। ये भी शायद तुम लोगों को क्वेश्चन से एक 1 मार्क क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स करके पूछ के या कुछ भी ये पूछ सकता है। तो व्हाट इज excess of income over expenditure is known as
डैश करके बोले तो सरप्लस, वाइल एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम इज नोन एज डेफिसिट. ये सेम वे उसमें भी पूछ सकता है अपना ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. इफ देयर इज अ सरप्लस it is added to the capital fund, and if there is a loss it is deducted from the capital account. जो हम लोग ने जो प्रीवियस इसमें जो अपना प्रॉपर्टी कंसर्न में सब बताया था. नो फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये एक बार जस्ट एक बार अक्सर देखे जाएगा, एंड देन नेक्स्ट क्लास में जो आप लोग को मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट और जो स्टाइल जो कैसा प्रेजेंट करने का है वो बताएगा. लेकिन एक बार हम लोग ने एक बार उसको देखते हैं फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, देन वी विल कंक्लूड दिस. नो फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट. ये शायद क्वेश्चन आ सकता है, शायद नहीं, डेफिनेटली क्वेश्चन आ जाएगा. ठीक है. दिस अकाउंट रिकॉर्ड ओनली रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड इनकम ऑफ करंट ईयर ओनली. रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड इनकम ऑफ करंट ईयर ओनली. थर्ड, इट इज सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑलरेडी बताया हुआ था. फोर्थ, इट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट सरप्लस, that is excess of income over expenditure, or deficit, that is excess of expenditure over income. Already explained किया हुआ है. Now fifth point, income and expenditure account is always accompanied with a balance sheet. It has no opening balance. Surplus or deficit is transferred to capital fund. Eighth, it records all cash items as well as non-cash items which are related to current period, current year. Example, salaries paid, outstanding salary, bad debts, depreciation on fixed assets, etc. So bad debts का तो बात नहीं होते हैं, but still कुछ ऐसा और that type of कुछ organization रहेगा तो. The preparation of income and expenditure account. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट. ये बार बार जो रिपीट हो जाता है. ऑल रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड टू इट, एंड ऑल रेवेन्यू इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड टू इट. इट इज सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. वैसा ही है, बार बार एक्सप्लेन किया. अभी ये पूछ सकते, समझो एक 5 मार्क का या नहीं तो 3 मार्क का, या आपको पूछ सकते हैं एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. तो ये जो पॉइंट्स आपका जो माइंड में रहना चाहिए. दिस इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड. Okay, so don't get confused. It is, you make it clear. जो भी explain करते टाइम में एक बार ये जो देखेगा तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा. Okay, so take it seriously and study it. Now in the next class we will see the specimen of income and expenditure account. स्पेसिमेन बोलेगा तो मीन्स अ फॉर्मेट और परफॉर्मा, वट एवर ये जो है उसका बताएंगे. Now let us conclude this class. I request all my students to study regularly. If you don't understand, watch again and again. You can drag back, you can see at any time. Whichever portion you don't, it is not clear for you, you can just go to the particular portion, particular class and see that again and again. Because I want my students, those who watch those subscribe to my channel and watching regularly my classes and study my classes, and with the help of my classes and follow the instructions, they must score full marks or just close to 100% mark. Maximum mark scores होता है. And above all, most important, you all must make a strong base in the subject that decides your career. आगे आपका कैरियर डिसाइड करता है जो आप कितना मीन्स आपको नॉलेज, डेप्थ ऑफ नॉलेज इसमें है उसके अनुसार है. So when I teach, when I means explain, there will be a professional means just professional attachment to it, professional base रहेगा. Okay, that means when you go to the means जो for auditing में जो CA का जो जाएगा, ऑडिट क्लर्क बन के CA में जाएगा, तो you will be means just ये सब है ना बहुत हेल्प हो जाएगा और CA करने में ये सब में बहुत इजी हो जाएगा. Please read again and again, learn and practice to achieve your life's goal. I request you all to share my videos to reach more and more people, so that many students can take the benefit and many public can take the benefit, because there are some other general purpose videos also uploading. Okay, now message is help each other to grow together for a better India. साथ में मिलके
ग्रो कर सकते हैं, मीन्स बड़ा हो सकता है। सब मिल के काम करने का, मिल के ये करने का, हेल्प करने का, आपस में हेल्प करो। और ये बहुत पब्लिक को हेल्प हो सकता है, बहुत स्टूडेंट्स को हेल्प हो सकता है, जो दोस्त हु कैन नॉट अफोर्ड ट्यूशन क्लासेस, और बहुत जन को तो क्लास में समझ में नहीं आएगा, तो ये देख के पढ़ सकते हैं। आपका जो रेगुलर क्लासेस में अगर टाइम नहीं मिला या मूड के हिसाब से, ये सब के हिसाब से डिपेंड होते हैं, और क्लास वो बार बार रिपीट नहीं हो सकते, देयर आर टाइम कंस्ट्रेंट्स। तो ये जो रहता है इसमें टाइम कंस्ट्रेंट्स नहीं है, कभी भी रात को या कभी भी एनी टाइम यू कैन जस्ट गो टू द चैनल, गो यूट्यूब चैनल, एंड देन पर्टिकुलर जो सेक्शन है, पर्टिकुलर क्लास है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट, पर्टिकुलर क्लास, वो सब आप देख के पढ़ सकते हैं, बार बार रिपीटेडली देख सकते हैं, ठीक है। और समझो कुछ पर्टिकुलर ये नहीं समझ में आता तो उधर पॉज करके, ड्रैग बार करके, पीछे पुल करके, और वापस ये करके, वापस रिपीट करके, सुन के ये करके ये कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है। तो और ये वीडियोस को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और बहुत जन को वो हेल्प हो सकता है, ठीक है। बिकॉज इंडिया नीड्स मेनी टैलेंटेड एंड हाईली स्किल्ड यंग जनरेशन, तो उसमें सबका हेल्प होना चाहिए, सबका ये होना चाहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब if not subscribed yet, and share to your contacts. Thank you.